नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની 84મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। 84મી ગાથા એનો અન્વયાર્થ ભાવાર્થ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ 84મી ગાથા ઉપર જે વિસ્તાર કર્યો છે તેના કેટલાક અંશ લીધા છે। શેષ અંશ આજે લઈશું। તે પછીથી બીજા અધિકારની ગાથા 85 નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું। તો પહેલા આપણે 85મી ગાથા લઈએ છીએ। સળંગ ગાથા 212 અને બીજા અધિકારની ગાથા 85 એના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि आगे वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से रहित जीवों को तीर्थ भ्रमण करने से भी मोक्ष नहीं है, ऐसा कहते हैं। तीर्थ भ्रमण करे पण वितराग स्वसंवेदन ज्ञान रहित होय तो कई मुक्ति थती नहीं। ये बात हवे 85મી गाथामां करे छे। गाथा 85 तीर्थम तीर्थम भ्रमता मूढ़ानां मोक्षो न भवति ज्ञान विवर्जितो येन जीव मुनिवरो भवति न स एव। 85મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે कि तीर्थम तीर्थम भ्रमता मूढ़ाना तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करने वाले मूर्खों को मोक्ष न भवति, मुक्ति नहीं होती। जीव ये न ज्ञान विवर्जित, ये जीव क्योंकि जो ज्ञान रहित है स एव मुनिवरः न भवति, वह मुनीश्वर नहीं है, संसारी है। मुनीश्वर तो वे ही है जो समस्त विकल्प चालों से रहित होके अपने स्वरूप में रमे, वे ही मोक्ष पाते हैं। सुगेश है तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करने वाले मूर्खों को मुक्ति नहीं मिलती। हे जीव क्योंकि जो ज्ञान रहित है वह मुनीश्वर नहीं है, संसारी है। तो संसारी ने मुक्ति क्या थी होय? मुक्ति तो मुनि ने होय ने। मुनीश्वर तो वे ही है जो समस्त विकल्प जालों से रहित होके अपने स्वरूप में रमे, यही मोक्ष पाते हैं। गुजराती में गाथा लईए। तीर्थ तीर्थ बमता छता मूढ़ मुक्त नहीं थाय, कारण ज्ञान रहित ते जीव मुनिवर न गणाय। एना अर्थमां कहे छे हे जीव अनेक तीर्थोमां भ्रमण करनारा मूर्ख जीवोनो मोक्ष थतो नथी। मूर्ख એટલા માટે કયા કે એમને અંતરમાં એમ છે કે तीर्थ भ्रमण करवाथी तीर्थमां जवाथी मुक्ति प्राप्त थशे, एटले ए अपेक्षाए एमने मूर्ख कह्या छे। तीर्थमां न जवुं एवो कहेવાનો आशय नथी। तीर्थमां जनार ए काई मूर्ख छे एम नहीं, पण तीर्थ भ्रमण करे छे, अनेक तीर्थोमां जाय छे अने ए अपेक्षा सहित जाय छे एना फळनी एवी अपेक्षा राखी छे के पोताने मुक्ति प्राप्त थाय। तो मुक्ति प्राप्त तीर्थ यात्रा थी थाय नहीं। तीर्थ यात्रानुं प्रयोजन तो एटलुं छे के तीर्थ यात्रामां तमने एवा सत्पुरुष
કોઈક મળી જાય, એવા જ્ઞાની મહાત્મા કોઈનો સંપર્ક થાય અને એ ભૂમિ જ્યાંથી ભગવાન મોક્ષે ગયા હોય એવી એ ભૂમિ ત્યાંથી ઉપર સીધા જ સિદ્ધ શિલા ઉપર પ્રભુ હોય એટલે એમનું સ્મરણ થાય, એવો તીર્થમાં જવાનો આશય હોય છે. એટલે તીર્થમાં ન જવું એમ કહ્યું નથી, પરંતુ જે તીર્થ ભ્રમણમાં તીર્થયાત્રામાં એમ માને છે કે એથી મુક્તિ થશે તો એમને મૂર્ખ કહે છે. એટલે કહે છે કે હે જીવ, અનેક તીર્થોમાં ભ્રમણ કરનારા મૂર્ખ જીવોનો મોક્ષ થતો નથી, કારણ કે જે જ્ઞાન રહિત છે તે મુનિ નથી પણ સંસારી છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા સમ્યક દ્રષ્ટિ જેને ચોથા ગુણસ્થાનથી આગળ વધી અને સાતમા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની દશા વર્તી છે અને મુનિ થયા છે, એવા મુનિ જ ખરેખર એવા ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર દ્વારા સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરે છે, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે અને નિર્વાણ પામીને મોક્ષે જાય છે. એટલે મુનિ નથી અને સંસારી છે, એ ક્યાંથી મુક્તિ પામે? આગળ કહે છે કે નિર્દોષ પરમાત્મા ભાવનાથી ઉત્પન્ન થયેલ જે વિતરાગ પરમ આનંદ રૂપ નિર્મળ જળ, તેના પૂર પ્રવાહયુક્ત નિર્જર એટલે ઝરણ સમાન જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણોના સમૂહરૂપી ચંદન આદિ વૃક્ષોના વનથી સુશોભિત દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તી ગણધર આદિ તીર્થયાત્રાળુઓના કાનને સુખકારી એવા દિવ્ય ધ્વનિથી શોભાયમાન તથા અનેક મુનિજનરૂપી રાજહંસ આદિ નાના પ્રકારના પક્ષીઓના શબ્દોથી મહામનોહર જે અરિહંત વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવ છે તે જ નિશ્ચયથી તીર્થ છે. ગંગા આદિ તીર્થ કયા છે? એટલે અન્ય મતમાં ગંગા તીર્થ ગણાય છે ને. એટલે તીર્થ તો અરિહંત વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવ છે, દેવાદિ દેવ છે, ત્રણ લોકના નાથ છે તે તીર્થંકર દેવ, તે જ તીર્થના કરનારા છે. પણ લોક વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ એવા ગંગા આદિ એ તીર્થ નથી. પરમ નિશ્ચયથી તો વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લીન એવા મોક્ષાર્થીઓને સંસાર તરવાના ઉપાયમાં કારણભૂત હોવાથી જીનેશ્વર રૂપ પરમ તીર્થના જેવું જે નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મતત્વનું સ્મરણ એ જ તીર્થ છે. જો બીજી વાત આ લીધી, નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મતત્વનું સ્મરણ, એમાં એકાગ્રતા લીનતા એ જ એને માટે તીર્થ છે. વ્યવહારથી તીર્થ કયા છે? તો કે છે કે વ્યવહારથી તીર્થંકર પરમદેવ આદિના ગુણ સ્મરણના કારણરૂપ હોવાથી તેમના નિર્વાણ સ્થાન આદિ તીર્થરૂપ છે, જે મુખ્યપણે પુણ્યબંધના કારણ છે. એવા તીર્થ સ્થાનમાં જવાથી એવા તીર્થંકર ભગવાન આદિના સ્મરણ કરી અને એમના ગુણોનું સ્તવન કરી અને એવા ગુણો મારા પણ છે એવી ભાવના ભાવી અને એમના પુરુષાર્થને યાદ કરી અને એમાંથી બોધપાઠ લઈએ છીએ એટલે શુભ ભાવ હોય છે. ત્યાં પ્રભુ પ્રત્યેનો અહોભાવ હોય છે, એવો ભક્તિનો ભાવ પણ હોય છે. એટલે એથી પુણ્યનો બંધ થાય છે. અહીં ભાવાર્થ એ છે કે ઉપર કહ્યું જે નિશ્ચય તીર્થ, તેની શ્રદ્ધા પરિજ્ઞાન અને અનુષ્ઠાન રહિત એવા અજ્ઞાની જીવોને બીજા તીર્થો મુક્તિના કારણ થતા નથી. પોતાનું નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપ એનું સ્મરણ, એમાં એકાગ્રતા તે જ નિશ્ચયથી એને માટે તીર્થ છે. અને એવા તીર્થની શ્રદ્ધા, એનું પરિજ્ઞાન અને એનું અનુષ્ઠાન નથી એવા અજ્ઞાની જીવને બાહ્યમાં બીજા જે તીર્થો છે તે કઈ મુક્તિના કારણ થતા નથી. તો આ રીતે 85મી ગાથા છે. આપણે 84મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે તો એનું સહેજ પુનરાવર્તન લઈએ છીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. 84મી ગાથાની અંદર તો એ વાત ચાલી રહી છે કે આ લોકમાં નિયમથી
જ્ઞાનને માટે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરાય છે. કેવું જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, આત્માની અનુભૂતિ કરવી છે, તો એ પહેલા આત્મા કેવો છે, જેવો છે તેવો અનેક નય દ્વારા આત્માને જાણવા માટે શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે. અને એ શાસ્ત્રમાં પણ જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી વાત આવી છે. આ શાસ્ત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન ખરેખર તો જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી છે, તો એને શાસ્ત્ર કહેવાય છે. અને એવા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ જે છે તે નિયમથી જ્ઞાન માટે કરવામાં આવે છે. તો તે શાસ્ત્રોને ભણવાથી પણ જેને ઉત્તમ જ્ઞાન થતું નથી, ઉત્તમ જ્ઞાન એટલે પોતાના આત્માનું જ્ઞાન નથી થતું, તો કે છે કે તે શું મૂર્ખ નથી? આવા ઉત્તમ શાસ્ત્રને ભણે, અભ્યાસ કરે, એમાં એકાગ્રતા કરી અને બધી વાતને પકડે, સમજે અનેક નય દ્વારા, અને છતાંય જો એવો ને એવો કોરો રહી ગયો તો એ મૂર્ખ કહેવાય. કેમ કે શાસ્ત્રમાં આવેલી વાતના પ્રયોજનને એને જાણ્યું નહીં કે શું પ્રયોજન હતું આ વાત સમજવાનું. એને તો પકડીને માત્ર ચર્ચામાં જ રોકાઈ રહ્યો, વાદ વિવાદમાં રોકાઈ રહ્યો. ભગવાને 6 દ્રવ્ય કયા, 9 તત્વ કયા, તો એનું રહસ્ય તો એ સમજો નહીં કે 6 દ્રવ્યમાં પોતે એક જીવ દ્રવ્ય છે, અને 6 દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ છે. 6 માંથી 7 થતા નથી કે 5 થતા નથી, અનાદિથી 6 ના 6 જળવાઈ રહ્યા છે. એટલે એ અવિનાશી છે, તો પોતે ભગવાન આત્મા અવિનાશી છે. એ વાત તો એને એમાંથી પકડી નહીં અને માત્ર એને બુદ્ધિનો વિષય બનાવી દીધો. તો એવા બુદ્ધિનો વિષય બનાવનારા આ ધર્મના શાસ્ત્રોને માત્ર બુદ્ધિનો વિષય બનાવવા વાળા એ મૂર્ખ નથી, અર્થાત મૂર્ખ જ છે. આ વાત ચાલી રહી છે. તો 84 ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે, એનો જે બાકી રહેલો ભાગ છે, શેષ ભાગ, તે આપણે હવે લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 6, એના પાના નંબર 46. हिंदी करते हिंदी करना, हिंदी हिंदी करना। परमात्मा प्रकाश 84 गाथा चलती है। क्या कहते हैं? आलोक में यद्यपि लोक व्यवहार से नवीन कविता का कर्ता कवि कहने में आता है, नवीन करता है ना, नवीन रचना करे, काय बनी लोक व्यवहार में करता कहवाय कवि। ये कहीं विशेष में सेम कहते हैं। अंदर आत्मज्ञान बिना एक कवि की कीमत कहीं नहीं, कोई कीमत है ही नहीं। जिसमें आत्मज्ञान नहीं, ये कवि से क्या। और प्राचीन काव्यों की टीका के करता को गमक कहते हैं। पुरानी टीका हो शास्त्र में यानी टीका का करना में गमक कहते हैं। ये शू कहते हैं? अंतर आत्मज्ञान राज की भिन्न से होकर जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो और स्व आत्मा का वेदन हो, ये ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है। ये ज्ञान में जन्म मरण का अंत है। आ तो है कि सुख भाव है, नहीं जात्मक कृष्ण हो। जिससे बाद में कोई न जीत सके ऐसा वादित्व हो, एवा वाद करे मैंने वही वादित्व हो। ज्ञानी वाद करते हैं, शास्त्र में लिखने आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वादित्व भी आत्मज्ञान बिना कोई उसकी कीमत नहीं है। जिसमें आत्मा का आनंद का ज्ञान न हो, उसकी कोई कीमत नहीं कहते हैं। यहाँ तो
दया दान व्रत भक्ति का परिणाम की भी कीमत नहीं आत्मज्ञान पास है। वो कुछ चीज है पुण्य बंध का कारण है। आए तो शास्त्र में ज्ञान है, ये भी आत्मज्ञान बिना कोई कार्यकारी नहीं है। अरे बात है होता है नहीं, आत्मज्ञान है अभी तो होता है, तो सुबह ज्ञान आत्मज्ञान की है। अधिक है शासन आता है। हम भूमि वो बात करे समझ बंद रहा था टेंडर ऑफिस तो कि अपनी आपको नीचना है और ऐसा दुर्क्षित का ऐसा है जिसमें भगवान की शासन की शोभा होगी व्यवहार। श्रोताओं के मन को अनुरागी करने वाला शास्त्र का वक्ता हो, समाज को अनुराग से खुशी कर देगा। भारी वचन भाई, इसमें क्या, जिसमें भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान न हो तो आज चीज की कोई कीमत नहीं। प्रशंसा लायक तो आत्मज्ञान है उनके। इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान है। इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान होता है। तो भी निश्चय नहीं से वितराग ज्ञान ही। अपना स्वरूप वितराग निर्विकल्प है, उसका वितरागी ज्ञान बोले थोड़ा हो, शास्त्र का जानपना थोड़ा हो, तो आत्मज्ञान है वही प्रशंसा के लायक है। निश्चय नहीं से वितराग ज्ञान ही समय रूप ही ज्ञान की अध्यात्म शास्त्र में प्रशंसा की गई है। जिसमें जन्म मरण का अंत है और मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो, ये आत्मज्ञान के अध्यात्म शास्त्र में तो प्रशंसा की है। समझ में आया? इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान के बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख है। फिर भाई आई बात होता उनका अपना ज्ञान वाला बुद्धि वाला तो मूर्ख है कैसे? પોતાનું જે અંતર આત્મ સ્વરૂપ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા એનું સન્મુખ થઈને જે અંતરના જ્ઞાનનો સ્પર્શ થઈને જે જ્ઞાન આવે એનું નામ સંજ્ઞ જ્ઞાન ને એની પ્રશંસા અધ્યાત્મ શાસ્ત્રમાં છે। અધ્યાત્મ પ્રશંસા की है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है। इसलिए स्वस्वेद ज्ञान के बिना ज्ञान स्वरूप प्रभु आत्मा उसका स्व संवेदन, स्व अपना प्रत्यक्ष ज्ञान का वेदन, ऐसे ज्ञान के बिना अध्यात्म शास्त्रों में प्रशंसा तो उसकी की है। ये बिना शास्त्रों के पढ़े वो भी मूर्ख है।
आखिरी पाठ है ने નું ન થતું છે ને તેણ બી બહુ ન જાતું વરું પ્રધાન આત્મજ્ઞાન નહીં તો કે મૂઢું ન થતું એ મૂઢ નથી યથાર્થ સત્ય સત્ય કઈ और जो कोई परमात्मा ज्ञान के उत्पन्न करने वाला परमात्मा ज्ञान के उत्पन्न करने वाला थोड़े थोड़े शास्त्रों को भी जानकर छोटा न थोड़ा ऐसे शास्त्रों को जानकर वितराग सूक्ष्म ज्ञान की भावना करते हैं। अपना ज्ञान आनंद स्वरूप उसका ज्ञान करके उसकी भावना करते एकाग्र होते हैं। वे मुक्त ही जाते हैं, वह मुक्त हो ही जाते हैं ये मुक्त हो जाते हैं। छोटा न थोड़ा शास्त्र में भगी ने पुनः आत्मज्ञान जिसने हुआ परमात्मा सर्वोत्तम सार में कहा है अमृतचंद्राचार्य हमें तो आत्मा छे इसमें दृष्टि लगाकर हम तो स्थिर हो अंदर होता है विशेष ज्ञान का सूक्ष्म से बस हो उसमें चैतन बिंब प्रभु अंदर उसका ज्ञान करके दृष्टि करके स्थिरता करना बस विशेष सूक्ष्म से बस समझ में आया? और बात है प्रशंसा नौ पूर्व किया 11 को या आत्मज्ञान में क्या प्रयोजन भूत तो ये है आत्मा का ज्ञान में वितरागता का अंश प्रकट होता है ये प्रयोजन है। समझ में आया? आई बात में हुई बाहर बोले अंदर रहता है ज्ञान ऐसा ही कथन अंदर से ग्रंथों में हर एक जगह कहा है दुआ पाउच वैराग में लगे हुए जो अंतर आत्मज्ञान करके वैराग में लग जाए फल से रहित रायत से रहित सम्यक ज्ञान सहित राग से रहित वैराग में लग आया नाना शास्त्र कहेवाय कि मोटो नानू कहेवाय थोड़ा मोटू है समय 4 से 15 श्लोक से साधन से 11 में तो 18,000 पद में एक पद में 51 श्लोक में क्या एक आचार्य में 18,000 पद में एक पद में 51 करोड़ जरा श्लोक क्या ये शब्द बहुत मानो छोड़ू પણ એને પડીને પણ આત્મજ્ઞાન કરે
बहुत है। है हाँ बात है। बराबर जो आप प्रोफेसर तुम्हारा संसद बनते हैं घणेला ने पण आई कई किंमत नहीं इनके। बिल्कुल सच्ची बात। जिसमें जन्म मरण का अंत आवे एक ही क्या जन्म मरण अनंत खड़ा है मात्र एक चीज क्या अहिया तो जन्म मरण का अंत आया आत्मा का ज्ञान हुआ जब भव का अंत भव सिंधु तर गई क्या आई बात लोगों ने बारे में आयु लागे सला ये कैसे मनी बात कैसे लगे हुए और मोह शत्रु को जीतने वाले हैं। राग रूपी शत्रु जो मोह पर में था उसका तो जीतने वाले हैं। भले शास्त्र का ज्ञान कम हो ऊंचा हो इसे कहा ज्ञान ने वैराग शक्ति दो अंदर में है निगर में आई जाने ज्ञानी को ज्ञान वास्तविक तत्व का ज्ञान है वैराग राग पर वैराग ये ले सकती मोह है। वे थोड़े शास्त्रों को ही पढ़कर सुधर जाते हैं मुक्त हो जाते हैं। और वैराग के बिना पर पदार्थ में राग का निशाना इसे वैराग बिना ये वैराग हो वैराग यहाँ पायड़ी छोकरा छोड़े कुटुंब छोड़े माटी वैराग एम नहीं अपना स्वरूप का ज्ञान ने पर पदार्थ में हकीकर वैराग करना। आत्मज्ञान बिना वैराग होता ही नहीं यथार्थ। अपना अस्तित्व महासत्ता प्रभु उसका ज्ञान और पर से उदास होकर वैराग से वैराग है। समझ में आया? आऊं लागे लुकूंगा मुक्त हो जाते हैं शुद्ध मुक्त। और वैराग के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते करते हैं। वैराग नहीं परमा प्रेम है तो उसको आत्मज्ञान भी नहीं न वैराग भी नहीं है। यह निश्चय जानना वैराग के बिना करते हैं वैराग उदास चाहे जितना पुण्य का वैभव हो आबरू हो शरीर आदि हो सब से वैराग 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 बिना सब शास्त्रों के पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते। यह निश्चय जानना परंतु ये कथन अपेक्षा से है थोड़ा पकड़ इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना। जमुनो अभ्यास से अपना हित माची समझ में आया। दिखाव करवा માટે દુનિયાને પસંદ કરવા માટે મને આવડે છે બતાવવા માટે નહીં अपने માટે अभ्यास करना बहाने से ये बहाने से शास्त्र का अभ्यास नहीं छोड़ना। और विशेष शास्त्र के पाठी है उनको दूसरे न देना
सम्यक ज्ञान सहित आत्मज्ञान सहित शास्त्र का पाठ्य विशेष है। समझ में आया? आत्मज्ञान सहित शास्त्र का पाठ्य बहुत है, उसको दुश्मन न देना। जो शास्त्र के अक्षर बता रहे हैं और आत्मा में चित्त नहीं लगाया है, तो ये बात है। शास्त्र में ऐसा कहा, शास्त्र में ऐसा कहा, सब है। तो आत्मा में चित्त नहीं लगाया, अंतर चैतन्य सिंधु, भव सिंधु नो पार करने वाला भगवान, ये चैतन्य सिंधु का ज्ञान सहित एम चित्त लगाया नहीं, यानी एकला शास्त्र पढ़ा, शास्त्र का अक्षर बता रहे हैं। देखो शास्त्र में 8 ठिकाने कहीं हूँ से मारे तो परमात्मा प्रकाश शुरू करना है। क्या होती सुषमासी आवडता नव्हता ऋषी, हे तर हे शब्द याद नव्हता। गुरु तेग महारुष्मात वैराग જ્ઞાન સહિત નહીં બાંધે। महारुष प्रतिकूलताમાં દ્વેષ ન કર, अनुकूलताમાં राग न कर, राग द्वेष नहीं करना, वैराग करना। बराबर। इतना शब्द याद नहीं था, हम आत्मज्ञान था, हम करते हैं उल्लास था, वैराग था। एक क्षण में उड़द तुष दिन करते थे। एक बाई उड़द ने तुष खुचरा पलौनी के एक बाई के क्या बैन करते हो? क्या तुष मास दिन करते हैं। खुचरा क्या छिलका और रस एक सुनकर ओहो, और आग आदि फुट तो भान तो था। एकदम राग से हटा कर अंदर में घुस गया। ये आपको निमित्त किया नहीं तो न किया, निमित्त किस वक्त ये सब दिखते हैं। उड़ने दाम छिलका भिन करके बहुत लिखते हैं। जब तक वो नहीं था, जब तक कहाँ हुआ? ये अपने से हुआ, चाहे उसको निमित्त के न हुआ। समझ में आया? निमित्त किया नहीं कुछ, नहीं तो निमित्त कहने में आता नहीं। मानता नहीं, या तो अपने से किया है, निमित्त है नहीं। मानता नहीं, निमित्त है मानते हैं, निमित्त से हुआ नहीं, करता नहीं। मोटो झगड़ो છે ને। હું કરે છે કઈ તો એ દિશામાં પુત્ર કાઢવાનો। ગુજરાતીમાં બોલે છે અડદની દાળ એવું બોલ્યું। કૂતરા દાળ પલો દાખલો ગુજરાતીમાં છે, ગુજરાતીમાં કીધું ને, હિન્દીમાં કીધું ને, ગુજરાતીમાં ગુજરાત હિન્દી ભાષા સરસ। અડદની દાળ ધોળી હોય કરે છે ને, કૂતરું કઈ પલાવીને કૂતરું કાઢીને એમ કે મુનિ હતા, આત્મજ્ઞાની હતા। આમ ઓહો બા ક્યાં કરते हो, શું કરો છો? કે दूस खोतरा छिलका और अड़दनी दाल भिनकर। ऐसा सुनकर एकदम अंदर में राज का छिलका है, मेरी चीज अंदर आनंद कर रहे। धोला सफेद शुद्ध, थोड़ा नाम शुद्ध અને આનંદ મીઠા गोवा आनंद है। उसमें घुस गई केवल पाई। अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान विभूति।
ऐसी बात चर्चा आपके बिना कौन सुनाए। हाँ हाँ हाँ। ये करना वो किया, अंतर्दृष्टि और लीनता ये करना था। बराबर। या हिसाब से ज्ञान ओछा हो उसके बाद कोई संबंध नहीं। हाँ हाँ हाँ। आत्मज्ञान बिना तो शास्त्र का अभिमान भी हो जाए। समझ में आया? हमको आते हैं, उसका वैसे बोलते नहीं आते हैं, समझाते नहीं आते हैं। हाँ जो विशेष शास्त्र के पाठी उनको दुश्मन न देना। शास्त्र के अक्षर बता रहे हैं और आत्मा से चित नहीं लगाया। वह ऐसे जानना जैसे किसी ने कण रहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया। पुतरा पुतरा न ढगला कण न મળે દાણો નહીં पुतरा एकला ढगला छिलका। किसी ने कण रहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया होगा। वो किसी काम का नहीं। इत्यादि पीठिका मात्र सुनकर जो विशेष साधर्ज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, उसकी निंदा नहीं करना। आत्मज्ञान सहित जिसका शास्त्र ज्ञान बहुत है, इसकी निंदा नहीं करना। समझ में आया? जय विशेष साधर्ज्ञ है उनकी निंदा नहीं कर। और जो बहुश्रुत है उनको भी अल्प शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। संज्ञ ज्ञानी है, अनुभवी है, शास्त्र ज्ञान थोड़ा हो। समझ में आया? अल्प शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। समझाता है आवड़तो नहीं તમને, बोलता आवड़तो नहीं, जनता यज्ञ नहीं, इनकी निंदा करे। अरे सांभळो बापा को कंडिया मारे या तो बोलना। क्योंकि पर के दोष ग्रहण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है यार। उससे ज्ञान और तप का नाश होता है। उससे तो सम्यक ज्ञान में इच्छा निरोध रूपी शांति उसका नाश होता है। हाँ हाँ। आगे 85 एक बात नहीं संभालिए। पहले शास्त्र ज्ञान ने आत्मज्ञान विना नित्य छड़ाया। હવે જાત્રા કરવા નીકળ્યા મોટા 5-5 લાખ ખર્ચી 2-2 લાખ ખર્ચી મોટી જાત્રાઓ સમેત શિખર ને गिरनार ने। वितराग सब समय ज्ञान से रहित। जिसको आत्मज्ञान नहीं, राग रहित भगवान का आत्मा का ज्ञान नहीं, ये तीर्थ में भ्रमण करते करते मूंड कहीं आत्मज्ञान पा पाएगा नहीं उसमें। ये तो स्वभाव है। आत्मज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा ऐसा है नहीं है। तीर्थ भ्रमण करने से भी मोक्ष नहीं है ऐसा कहते हैं। हो नाड़ी पकड़ी છે ને બધાની। તીર્થુ 85 તીર્થુ ભમંતામ મુંડમ મોખું ન હોઈ સ્નાન જીવ જીવજે જીવ મુનિવર હોઈ ન સોઈયા। तीर्थ तीर्थ प्रत्यय भ्रमण करने वाला समय शिखर में गिरनार में यात्रा निकले फलाना न हो यानी शू विषय में धर्म क्या। अपना आत्मज्ञान बिना ये तीर्थ भ्रमण करने से भी कोई मोक्ष होता नहीं, धर्म होता नहीं।
भ्रमण करने वाला मूढ़ों को मुक्ति नहीं होती। बेचारा यात्रा पर कैसे જ્યાં આત્મજ્ઞાન નથી, સ્વનું જ્ઞાન નથી, अपना જ્ઞાન नहीं। ये मूढ़ ने तीर्थना भ्रमण करने से कोई धर्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। हाँ बोलो लोभ करे परमात्मा का व्यवहार तो लोभ करते। क्योंकि जो ज्ञान रहित है, क्या किसका ज्ञान रहित? अपना स्वसंवेदन, अपना ज्ञान, ये अपना स्वसंवेदन से रहित है। वह मुनिवर नहीं, संसारी है। ये मुनिवर न भवती। आमो तो कैसे भाई जिसको राग रहित अपना चैतन्य स्वरूप, उसका ज्ञान नहीं, ये मुनि नहीं। भले तीर्थ यात्रा करें, प्यारे को आया जाए क्या जाऊँ नहीं चाहिए, गिरनार जाना है, समेत टिकट जाना है, ये जाने हो आत्माना राग रहित भिन्न चैतन्य ज्ञान बिना ये बड़ा तीर्थ भ्रमण मूंढ ने शू लाभ कर सके। જેને આત્મજ્ઞાન નથી એ મૂંઢોને પરિભ્રમણ કીર્તનો શું કરશે? ભગવાન આત્મા જેમાં વર નથી, મુખ્યને પછી જાન જોડી દીધી, જાન બરાત दुल्ला नहीं बरात जोड़ दीजिए। मोटी आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं। समझ में आया भाई? मालूम दुनिया थी भारत मुनिवर नहीं है, मुनिवर न भवती। ये तो संसारी है। अरे પણ આત્મજ્ઞાન નથી ત્યાં સંસારી એકલો। પહેલી છોકરા કુટુંબ દુકાન ધંધા છોડ્યા હોય, छोड़कर बहे जंगल में रहे। કહે છે કે જ્યાં આત્મજ્ઞાન વસ્તુ સ્વરૂપ નથી ત્યાં એ સંસારી છે। जो मुनिवत्सर तो वे ही है। मुनीष तो इसको कहिए मुनीश्वर। समस्त विकल्प जालों से रहित होके व्यवहारना विकल्प थी रहित होकर अपने स्वरूप में रमे। अपना स्वरूप आनंद कर्ण प्रभु उसमें जो रमे, आत्म राम निज पद रमे सो राम कहिए। अपना शुद्ध बात आखी दुनिया की जुदी है, ध्रुवाई कहीं મળે એવું નથી અત્યારે તો। એ તો ભાઈ ને ગમશે ને, એ વાત સાંભળવા મળી। એવી વાત બાપુ વાતો શું। ઓહો સંતોએ योगेंद्र देव शाह शासना करता 100 वर्ष पहले कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन
भाई लिखूं थे ना मन केला चंद ने कि अभी कोई परूपणा ऐसी करते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन बिना व्रत सब निरर्थक है ऐसा कहीं चलते हैं। केला चंद लिखो हमें तेरी थोड़ी ठीक है। हाँ तो व्रत करो नप्पा करो तब करो संयम लो आ बाहर नो ज्ञान नो। निश्चय आत्मज्ञान बिना निश्चय सम्यक दर्शन बिना ये बदा व्रत सब बदा निरर्थक फोगट है। आत्मा ने कहीं लाभ करने वाला। तो ये मानेगा व्रत में तप में करी सम्यक दर्शन समाशु निश्चय नो साधन है इनके। आ तो वस्तु નું સ્વરૂપ है। समस्त विकल्प जालों से रहित। निपुणों के कहिए न शास्त्र मत ऐसा चला है अलिंगरण में यतिनी बाह्य क्रिया जिसमें अभाव है पंच महावर्तना परिणाम आदि जो है उसका जिसमें अभाव है उसको आत्मा कहते हैं। अलिंगरण है समझ में आया। ओम 70 मूल 70 20 मूल है ना जिसमें यतिना बायाचार पंच महावर्त विकल्प कपादे नो विकल्प राज मुनिपना ना व्यवहार ये आत्मा में नहीं। बराबर। आत्मा तो ज्ञान में आनंद स्वरूप है प्रभु। वो विकल्प उसमें क्या है? इसको यहाँ मुनि कहते हैं। समस्त विकल्प से रहित होकर अंदर में रमे। स्वरूप आनंद का नाग भगवान उसमें रमे तो मुनि। पंचमावत पावे मुनि ऐसा नहीं कहा है। नग्न हो जाए नग्न पुण मोक्ष नो मार्ग है। नग्न पुण मोक्ष मार्ग है। नग्न पुण तो नहीं कर दिया। निज स्वरूप में रमे मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र निज स्वरूप में रमनता है। समस्त विकल्प जालों से रहित होके अपने स्वभाव में स्वरूप में रमे वे ही मोक्ष पाते हैं। आई तो स्व आश्रय बिना धर्म होता नहीं અને स्व आश्रय बिना मुक्ति होती नहीं। बराबर। पराश्रय लाख करोड़ हो गमे ते जाता व्रत शास्त्र ना ज्ञान एक कुछ मोक्ष का कारण नहीं। व्यवहार रत्नत्रय भी राग है मोक्ष का कारण नहीं। बराबर। तो ये क्या ना विकल्प से रहित होकर अतीन्द्रिय आनंद का घन प्रभु उसमें रमता रमे चित लगाकर स्थिर हो जाए। उसका मुनिपना है एम क्यों स्वरूप में रमे भी मुख पाते हैं मुनिवर। विकल्प जाल से रहित होकर अपने स्वरूप में रमे मुख पाते हैं। व्यवहार में है व्यवहार मुख का कारण है ऐसा नहीं है। तो आग से कथन किया है। निश्चय अपना स्वरूप की दृष्टि ज्ञान में रमणता हो
ત્યાં આગળ ऐसा विकल्प हो देवगुरु साहब की श्रद्धा पंचमावला व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग का आरोप दिया है बंद का कारण। हाँ 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 वाद विवाद कहीं पार पड़े उनसे निर्दोष परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ। परमात्मा परम स्वरूप भगवान आनंद परम स्वभाव भाव, न्यायिक भाव परम न्यायिक स्वभाव परिणामिक भाव। हमारा न्यायिक में परिणामिक भाव क्या है? परिणामिक भाव का अर्थ सहज स्वरूप टिका अस्तित्व अपना पूर्ण। ये निर्दोष परमात्मा ये अपनी चीज, उसकी भावना, उसमें एकाग्रता, उससे उत्पन्न हुआ जो विकराल परमानंद रूप, वितराग परमानंद रूप निर्मल जल, બે શબ્દ પીડ્યા રહ્યા। निर्मल नील पूर्व प्रवाह ये शब्द है। पूर्व प्रवाह शब्द, पूर्व प्रवाह शब्द पड़े गया। वितराग परमाणु निर्मल जल एनो पूर्ण प्रवाह। निर्दोष परमात्मा अपना स्वरूप त्रिकाली उसकी भावना से उत्पन्न हुआ। व्यवहार से उत्पन्न हुआ ऐसे नहीं कहा यहाँ। भगवान आत्मा निज परमात्मा निर्दोष परमात्मा वो आत्मा ऐसा है, इसकी एकाग्रता से उत्पन्न हुआ। वितराग परमानंद रूप, वितरागी परमानंद रूप निर्मल जब प्रकट हो, जब पूर्व प्रवाह उसके धारण करने वाले आनंद जल ना प्रवाह ना पूर्व ने धारण करवा वाला। શું ભાષા यानी ज्ञान दर्शादि गुणों का समूह रूपी चंद्रादि वृक्षों के वनों से शोभित। दीर्घनी बातचीत सुनवाते भगवान। ज्ञान दर्शादि गुणों से समूह रूपी चंदन आदि वृक्षों के घनों से शोभित वनों से, ये दर्शन आदि गुण रूपी समूह ये चंदन वृक्ष है। एना वनो शोभित भगवान हरियम देव। ये तीर्थ है, बधा तीर्थ में हरियम देव व्यवहार तीर्थ एम के परमार्थी तीर्थ तो भगवान आत्मा है। तो बाई में साक्षात हरियम तीर्थ बधा तीर्थ में तीर्थ व्यवहार है ऊंचा ये है। ओहो वितराग परमानंद निर्मल जो पूर्ण प्रवाह एना धारण करने वाला हरियंत भगवान ज्ञान दर्शनादि गुणों से समूह रूपी चंदन, ज्ञान दर्शन रूपी गुण रूपी समूह रूपी चंदन वृक्ष है। चंदन वृक्ष ने उपाधि उसके वनों से शोभित। देवेंद्र चक्रवर्ती गणधर आदि धर्म जीव रूपी तीर्थ यात्रियों के कानों को सुखकारी अति धनी। देवेंद्र देवना इंद्र, चक्रवर्ती मनुष्यना इंद्र नरेंद्र, गणधर
સંતના નાયક મોટા ગણમાં ધરનારા એવા ભવિષ્યથી તીર્થયાત્રીઓ કે એવા તીર્થયાત્રીઓ આ તીર્થયાત્રી આવા એવા કાનોને સુકારી ऐसी दिव्य धनी से शोभायमान भगवान है। दिव्य धनी थी शोभायमान आवा देवेंद्र चक्रवर्ती आदि तीर्थ यात्रियों ने सुनने में आवे दिव्य धनी। हाँ 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 काने को सुकारी दिव्य धनी भगवान की वाणी उससे भगवान शोभायमान है। हाँ 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 ओम ध्वनि ओमकार सुनी ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे भगवान ने ओम ध्वनि सुनी गणधर शास्त्र होते ऐसी दिव्य ध्वनि से शोभायमान भगवान। તો એ રીતે 84મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો અને 85મી ગાથાનો વિસ્તાર ચાલે છે। હજી ઘણી વાત આગળ આવશે, એ બધું આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। सुखधाम अनंत सुसंत चली